Divya? Yes, sir. Yeah, we can start, Divya. Yes, sir. Once again, I welcome you all on behalf of Ahmedabad branch of CASA. I welcome our today's eminent speaker, CS Deepak Jain, sir. I welcome our Vice Chairman of Ahmedabad branch of ICI, CA Harit Dhariwal, sir, and all the participants. I would like to invite CA Harit Dhariwal, sir, our Vice Chairman of Ahmedabad branch of ICI, to address all the students. Respected faculty for the session, CS Deepak Jain sir, the committee members of Vikasa and all the dear students, a very good evening to everyone. A very interesting topic of Paramarsh yet again on managing stress. When I got to know about this topic, I got to, I recalled a very simple proverb which goes that, in life, if you are faced with any problem which you can solve, there's no need of worrying for it. And if you come across a problem which you cannot solve, even there's no need for worrying that also, because you as such you're not going to solve it. But what we do, we take up stress. We that is a problem. Whenever we face a problem, we take up stress. And believe me, friends, when we are juggling between friends, family, work, life, studies, everything, stress is something which is omnipresent. It will come. But how to manage stress is most important. And for that, we have a very learned, a very respected faculty, and whom better to have a professional with us to help us understand how to manage stress. So I'm very happy to see Deepak Jain sir addressing all the students on a very relevant topic. And thank you, sir, for sparing your valuable time and enlightening us. And we look forward to listening to your session today. And we all, I hope you all have a very happy learning. Thank you so much, sir, for your kind words. Our today's session is managing stress, managing life. As a layman, we mean stress is a feeling of emotional and physical tension. It can come out from the events or thoughts that makes you feel frustrated, angry, or nervous. And in simple words, as a professional, stress is something which we face while meeting the deadline of GST return and tax audit. And as a cricket fan, when during watching India versus Pakistan match, we face stress when India is on the losing side. है ना? So this is for sure that we cannot run from stress. And the question arises how we manage stress for our happy state of mind. And for this, I would like to introduce our today's faculty, uh, CS Deepak Jain sir. Deepak Jain sir is the proprietor of Deepak J and Associates Company Secretaries, founder of Vijayash Foundation and L&D organization, ex-vice president and company secretary of Unitac Limited, ex-chairman of Gurugram chapter of ICSI for 2 consecutive years, a passionate motivational speaker, yoga and meditation instructor. As a life coach, his favorite topics are managing life, stress by managing our body, mind, and soul, art of happiness and mindfulness, consciousness, enlightenment, and meditation, spiritual intelligence, and spiritual development. As company secretary, his favorite topics are corporate governance, corporate social responsibility, professional ethics, sustainability, inclusive growth, Companies Act, SEBI regulations, IBC and other allied legislation. Sir had privilege to address more than 500 sessions, workshops during his last 10 years. Thank you so much, sir, for taking this session in our Paramas series. We are so blessed to have you. The stage is yours, sir. So, good evening, friends. First of all, let me express my thanks to the Vikasa Management Committee Ahmedabad for inviting me and giving me this privilege to address the students, the learned students who are doing chartered accountancy course. Uh,
The topic is stress management, how to manage stress by managing our life. Because we do say how to manage stress, but actually we cannot manage stress. We manage our life by managing ourselves. We manage stress. थोड़ा सा मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशंस को ऑन रखेंगे. अगर जो इफ आई नेम एनी स्टूडेंट, he or she can speak if I ask any question, etc. For example, if I would like to ask any student, for example, Harit, can I ask students? We can have an interactive session that way. Yeah. So you can even ask them to put in the chat box, or you can want to interact. They can unmute, or they can even share their videos. However, is convenient to use. Yeah, no, I will not share any video because time is less. Many times when we share video, I mean something happens and it normally takes time. So first of all, let us invite anyone. For example, I invite Gaurav Mishra. Gaurav? Gaurav? Okay, I invite Janvi Jain. Janvi? Do you hear me? Hello? Hello. Janvi? Hello. Yeah, Yes, sir. Janvi. Yes. Would you like to tell us about this topic? Why we have kept this topic? Is this topic is relevant for you and for the students? Yes, sir. This is so relevant for us because we have so much stress and managing life problems and all. किस तरह का स्ट्रेस होता है आपको? मतलब ऐसा कि सर ऐसा कोई स्ट्रेस का कुछ नहीं है, मतलब ऐसा जैसे कभी पढ़ाई से रिलेटेड हो जाता है, फिर अभी क्या है कि मतलब ऐसा फैमिली, ऐसा पढ़ाई, मेन तो पढ़ाई का ही रहता है ज्यादा, और किसी का नहीं रहता. अच्छा, okay. So I just wanted to discuss that this topic is relevant for the students. So friends, I would like to share my screen also. I have a PPT. I'm just opening it. One second. I'm audible. Hello, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. एक second. Yeah. Yes, my screen is visible. Yes, sir. My screen is visible.
Is it visible? No, sir. Hello, Janvi. No, sir. No, sir. My No. screen is Not not visible, sir. No, Not not visible. visible. Not visible. एक second, hold on. Just let me take one. स्क्रीन शेयर की है मैंने, वो विजिबल नहीं है और मोर ओवर now visible. Yes, sir. Screen visible. Yes, Yes. sir. Yes. ओके ओके ओके, इसको स्क्रीन को बड़ा करें अभी, एक मिनट रुको, स्क्रीन को बड़ा कर, स्लाइड शो, स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ये चीज नजर नहीं आती। अब टॉकिंग वाला कहाँ गया? वो शक्ल वगल दिखेगी थी। So this PPT is visible now. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So if we begin and would define stress, we can say that whenever we face stress, there is a pressure on our mind. For whatever reason we feel a pressure on our mind, we call it stress. And it can happen for various reasons. The reasons are like we have various fears in life. We have workload targets. We have to achieve success, and then we have competition, expectations. Expectations, you know, gives us stress. Relationship. If you are not maintaining good relationship, it gives us stress. If our body is not doing good, we face stress. And then human beings have various negative emotions in life: anger, frustration, fear, revenge, hatred, jealousy, envy, greed, superstition. These are all negative emotions. If we have these negative emotions in us, it gives me stress. Am I right, students? Yes, sir. Vidhi, can you hear me? Vidhi, can you hear me? Hello. Yes, sir. Yeah, Vidhi. So मैंने इसमें लिखा है superstition. Superstition also gives us stress. Can you explain how superstition can give us stress? The slide is not visible actually. Oh, Hello. अभी तो I asked just Sir, actually, nahi. Hello. Slide is not visible. No. Hello. Yours. Let me again check. Sir, your screen is visible. We can see. Acha. Now it is visible. Yes, sir. Vidhi. Yes, sir. So I asked how superstition can give us stress. Would you like to say something? Sorry. So superstitious. Superstition. What do you mean by superstition? Sir, actually, the pressure which we create by creating of superstitious of the matter which Superstition is andhvishwas. I know, sir. So how superstition can give us stress? सब हम एक्चुअली वो माइंड में हम बिठा लेते हैं कुछ चीज जो हमें नहीं करना चाहिए, हम कुछ नेगेटिविटी हम माइंड में ले लेते हैं जिसे हम पॉजिटिवली ले सकते हैं, लेकिन वो हमें नेगेटिविटी देती है कभी कभी। यस, कई बार दिमाग में सुपरस्टिशन बैठ जाता है कुछ भी, जैसे किसी ने बोला हाँ, कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यस, तो आपका काम खराब हो जाएगा। यस, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस अननेसेसरी, आपने बिल्ली ने रास्ता काटा, हम उस बात को सोचते हैं कि मेरा काम खराब हो जाएगा।
So this also gives us stress. So I quoted here various causes which can give us stress. Let us proceed further. And when we happen stress, we face various consequences. You know, अगर जो stress continuously रहे हमको continuously we face continuously stress, we face depression, we develop various health problems, our performance gets reduced, our relationship gets disturbed. And in extreme cases, recently we saw we noticed one actor committed suicide, and we read newspaper, magazines, etc. We came across instances when stress जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, it leads to suicidal tendencies. Am I right? So remedy. What in your view, what is the remedy? If I ask Palak, Palak, can you hear me? I am audible. Hello. Hello. Yes, sir, you're audible. Yeah, Palak. Yes, sir. Palak. हाँ. In your view, what is the remedy for all these stress and problems? Hello. Hello. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. So where is Palak? Okay, Palak is not coming forward. Let me ask Keval. Yes, sir. Keval, in your view, what is the remedy of all these stress and problems, anxiety, depression and all? सर कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि फ्यूचर का ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि अगर ये होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, और वो तो मन Right. में हम एक अपनी इमेजिनरी स्टोरी बनाते हैं जिसको Yes. हम ओवर थिंकिंग भी बोल सकते हैं कभी कभी. कभी yes you are right. हाँ, तो कभी उसमें हम ज्यादातर क्या सोचते हैं सर कि जो नहीं होने वाला है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा अपने माइंड को जो है जो अपने विचार है वो नेगेटिविटी की तरफ उसको टर्न करते हैं हाँ, rather than positivity. Yeah, you gave one point. I appreciate you gave one point that overthinking की वजह से हमको stress होता है. Yes, sir. Let me ask again any other student. Ankita. Ankita, can you hear me? Ankita? Hello? Ankita, can you hear me? Okay, any other student would like to say the remedy for all these causes? Vidhi, Janvi, Palak, Keval, Jatin, Harit, Rahi, Ankita. Hello. I thought that अगर जो हम interact करते रहेंगे तो सेशन अच्छा रहेगा. अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो we may not like it much. Sir, I would like to tell something. Who is speaking? Jay this side. Can you hear me? Yeah. Please tell me. In your view, what is the remedy for all these problems? जो human beings को problem होती है, stress. Because for any yes. Just a minute, sir. Just a minute. Hello. Yeah. Yep. Am I audible? Yeah. You are audible. I was just telling that as Keval rightly said, he just pointed one of the like characteristic of being stressed or being depressed, right? So how can we overcome this is to understand those things properly. Like if you understand what we are going through, then only we will be able to find out any solution for that problem. Like without understanding the problem, we cannot find out about solution, right? So understanding ourselves, understanding feelings, understanding our surroundings, like how can we react, how can we act, and what will be the reaction of our actions. So that definitely matters, and ultimately that is what matters. So we need to
we need to understand ourselves. We need to what we say, हम लोग के बारे में एकदम जानना जरूरी है कि हम किस चीज के थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं और वो है क्या, एक्चुअली वो स्ट्रेस है क्या, किस चीज की वजह से. देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट मैनी रेमेडीज फॉर द सेम प्रॉब्लम, आई गेस. I appreciate, आपने सही कहा, इसको सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं कि I should be aware of myself, where I stand. I really appreciate. The point what I wanted to discuss, we all face stress. All the human beings face various problems, but many times suppose there is one stress, one situation. That situation has given stress, acute stress to one student, one human being, but the same situation doesn't give stress to the other human being, other student, other member, whatsoever. तो स्ट्रेस एक सिचुएशन की वजह से एक आदमी को स्ट्रेस हुआ, दूसरे आदमी को स्ट्रेस नहीं हुआ. तो स्ट्रेस किस वजह से हुआ? स्ट्रेस हुआ मेरी अपने परसेप्शन की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, मेरी अपनी थिंकिंग की वजह से. सो सिचुएशन हमको स्ट्रेस देती है, लेकिन अगर जो मेरा डेवलपमेंट नहीं है, मेरे थॉट ठीक नहीं है, मेरे को if I don't have proper life skills to live this life, so I will face more stress. And if there is another person who has more capability, more wisdom, more understanding than me, he may not be faced that stress. So in my view, we need to develop ourselves. We need to manage ourselves. Self-control, self-development is the remedy actually. Self-development and the self-control, self-development is the remedy. We need to develop ourselves. We need to change ourselves, our thoughts towards a good human being, towards someone who can manage ourselves, towards someone who can control ourselves. In many situations हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते. सपोज हमको किसी सिचुएशन में गुस्सा ही आ जाता है. अगर हमको किसी सिचुएशन में गुस्सा आया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, and that situation become bad to worse. Am I right? Any student would like to come forward? Rahi, Anshita? Many times we say कि stress हमको इस वजह से stress हुआ, but actually it happens. The stress happens because of my problems, my shortcomings, my less development, my thought process. So in my view, the remedy is self-development. How I can remove my stress? Only by developing myself, only by improving my life, my thoughts, my style of working, my style of reading. Yes, anyone would like to say anything? Rahi, Ankita, Keval, Palak? Yes, who is speaking? Janvi. Yes, Janvi. Sir, how to overcome from overthinking? Yeah, that I will discuss. Of course. I mean, this is a part of self-development. I just told you that self-development is the remedy. अब उसके अलग-अलग parts हैं. ये I will come on this overthinking. Okay. Any other students would like to say anything so far? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सेल्फ डेवलपमेंट. सो द रेमेडी इज सेल्फ डेवलपमेंट. हमको अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है. देयर आर टू वेज डियर स्टूडेंट्स टू लिव दिस लाइफ. आइदर आई कंट्रोल माय लाइफ और माय लाइफ कंट्रोल्स मी. many times when I am not able to control myself, मेरा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो लाइफ कहीं पहुंच जाती है. लेकिन मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल है, लाइफ के ऊपर कंट्रोल है. मैंने अपना गोल डिसाइड किया है कि मेरे को आफ्टर सम टाइम 1 year 2 year 3 year 4 year 7 years मेरे ये गोल्स है, मेरे को लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ ठीक चलती है. मेरा कुछ गोल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मैं डायरेक्शन लेस हूँ. I have not made any goal. I do not have any self-control over myself. I do whatever others say. Then my life reaches anywhere. And sometimes I face undesirable consequences in my life.
So it is very important, friends, that I control myself. I control my life. And how then to control myself? How to live this life in a good manner so that I can always be full of success, full of happiness, and full of perfect health. We will discuss now. So, friends, there are my life has three constituents, three important parts. If I concentrate nourishing those important parts of my life, for example, my body, my mind, and my soul. If I able to concentrate, nourish, develop my body, my physical strength, my mental strength, and my spiritual strength, I can live a good life. We will discuss how by managing my physical, mental, and spiritual intelligence, I can live a good life, a successful life, a healthy life, a better life. First, we will discuss physical strength. माय डियर फ्रेंड्स, जान है तो जहान है. अब इस कोविड में भी अगर जो आपने देखा हो, आयुष मिनिस्ट्री हैज सजेस्टेड दैट the public they have given various guidelines for handling this pandemic, that we public should do enough good exercise, physical exercise, preferably yoga and pranayam. जब हमारी बॉडी फिट रहती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहता है. जब हमारी बॉडी फिट रहती है तो हमारा माइंड शांत रहता है, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है, और हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है कि हम फिजिकली फिट हों, फिजिकली एक्सरसाइज करें, कुछ भी फिजिकल करें. मे बी वी कैन डू वॉकिंग, may we can even do some physical sport, or best is yoga, exercise, pranayam, and have a good diet. Ayush Ministry has given various guidelines. इसमें एक गाइडलाइन में ये भी है कि हमारी डाइट अच्छी हो, हम ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं. We should have fresh fruits and vegetables, and have diet which has enough protein and carbohydrates. So friends, physicality, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, हमारा माइंड उसके ऊपर डिपेंड करता है. मेरा स्ट्रेस लेवल इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, कितना अपना ज्यादा मेरा स्टेमिना कितना है. तो फर्स्ट पॉइंट टू मैनेज माय लाइफ, माय स्टेमिना, माय सक्सेस इज दैट मैं अपनी बॉडी को फिट रखता हूँ बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, बाय डूइंग फिजिकल वॉकिंग, स्पोर्ट्स, इवन डांस. यस, any student would like to say anything? Vidhi, Janvi, Bhagat, Keval, Jatin, Rahi, Ankita. Yes, any student come forward? In your view, what is the significance of being physically fit in our life? Yes, any student please come forward. Hello. Hello. Yes, sir. Rishi this side, sir. Yeah. Yeah, sir. So, like you correctly said, that it is essential for everyone. Like the first step towards nurturing your mental health is your physical health, and one of the key factors, like you said, is staying, like exercising regularly, eating healthy diet. One of the main reasons towards exercising is that when you exercise, your body gets enough oxygen, and that oxygen nurtures your brain and enables it to, the functioning. I mean, the more the oxygen your brain gets, the better it functions, and your thought processes, they clearer. And like even during yoga, there are a lot of breathing exercise. One of the key reasons why they are incorporated is because when your mind gets the oxygen, it is able to think better. So, one of the best things when somebody is stressed is to get up in the morning and indulge into exercises, be it yoga, be it running. And similarly, eating good food is also essential, because when the body is fit, your mind will also be fit. I mean, there are some nutrients in your food which are directly linked to the way your brain functions, be it nutrients like vitamin D3 or B12. They have a direct impact on
the emotional and the intellectual health of a person. So I mean, many a times there are people who they face mood swings or they go into depression because they are having a deficiency of, say, potassium or vitamin B12 in their body. So these are one of the key reasons why even your food needs to be correct, your physical strength needs to be correct, and more than that, whenever you indulge in exercise, or like you said, dancing or running or yoga, when you do something that you like, you automatically feel good. So the feel good factor also enables your brain to get a positive vibe out of it. Very good, very good. I really appreciate. आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको. आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही. हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे माइंड में, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. तो ऑक्सीजन इज रियली वर्क ए गुड बूस्टर फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर माइंड. बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया. क्या नाम बताया आपने अपना? सर रिंशी. रिंशी. RINSHI, रिंशी. यस. इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट्स आगे आए, मेंबर्स ऑडियंस आगे आए, कुछ बोले. आपने बहुत ही अच्छा बोला. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि आप भी अपने व्यूज बीच में शेयर करें. जब हम किसी प्रेजेंटेशन को, किसी वेबिनार को, सेमिनार को जब हम डिस्कस करते हैं, हम बोलते हैं, तो हमको बहुत अच्छा फील होता है. हमको समझ में भी टॉपिक उतना ही ज्यादा अच्छा आता है. So friends, the first is that my physical body, my physical strength should be updated. Daily मैं कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करता रहूं. और फूड, मेरा डाइट मेरी अच्छी रहे. उसमें हर एक तरह का whatever my body requires, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स, मैं उनको सबको लेता रहूं. तो बॉडी फिट रहती है तो मेरा माइंड फिट रहता है. सो मेरे इन माय व्यू, हमको बॉडी, माइंड और स्पिरिचुअलिटी, सोल, तीनों को इक्वल अटेंशन देनी है. टू लिव ए गुड लाइफ, टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, टू लिव ए हेल्दी लाइफ. अगर फिजिकली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ तो आई मे बी ए लूजर सूनर और लेटर. कई बार हम बॉडी को इग्नोर करते हैं. हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, चिंता करते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ठीक क्यों नहीं हो रहा. सब कुछ भूल के अपना फिजिकली बॉडी को फिट रखिए, तब आगे बढ़िए. चलिए आगे चलते हैं. नाउ आई मूव टुवर्ड्स मेंटल स्ट्रेंथ. हाउ टू वी कीप माई सेल्फ मेंटली स्ट्रांग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम मेंटली स्ट्रांग. माई मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होना बहुत जरूरी है. मेरा मानसिक विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की हम बात कर रहे हैं. शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए. हमको मानसिक विकास करना है, अपने माइंड को डेवलप करना है. हमने अभी अपनी बॉडी को डेवलप किया बाय डूइंग गुड एक्सरसाइज, बाय गुड ईटिंग गुड फूड. नाउ वी नीड टू डेवलप आवर माइंड. और माइंड का फूड्स क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जैसे बॉडी का फूड गुड डाइट, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स. माइंड का फूड क्या है? एनीवन? व्हाट इज द फूड फॉर माय माइंड? हेलो सर, मेडिटेशन. Sir, keep active our mind. Yes. Anyone else? What is the food for my mind? So enough sleep and good people, good thoughts, good vibes. Good thoughts. Good thoughts आप बोल सकते हो. Good thoughts. If I am having positive thoughts, this is the food for my mind. For example, मैंने जैसे टॉपिक लिया है cultivation of mind. तो अगर जो हम many times आप लोगों ने एक हमको ये कहा जाता है कि अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कंटिन्यूअसली दैट आई कैन डू दैट वर्क, सो आई कैन डू दैट वर्क. सो अगर जो मेरे पास पॉजिटिव थॉट्स हैं, आई हैव पॉजिटिव थॉट्स दैट मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा. मेरा थॉट ऐसा है कि मेरा एंड रिजल्ट अच्छा है, आई कैन अचीव माई गोल. कोविड से मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल रहूंगा लाइफ में, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा. मैं अपना कोर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को पास कर लूंगा. सो इस तरह के थॉट से मेरा माइंड डेवलप होता है. अगर जो मेरे माइंड के अंदर फियरफुल थॉट्स हैं, इफ आई रिपीट कंटिन्यूअसली कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को गुस्सा आ जाता है,
मैं जल्दी थक जाता हूँ, मेरे को रोना आ जाता है, मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ, मेरे में पेशेंस नहीं है। तो ये थॉट्स मेरे माइंड को डिस्ट्रॉयड करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं कंटिन्यूअसली पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर डालता रहूं, रिपीट करता रहूं, सेल्फ टॉक करता रहूं। सेल्फ टॉक अपने को पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करना। दूसरा टॉपिक है इसमें, थॉट्स आर इम्पोर्टेंट। मनुष्य के लिए सोच ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थॉट्स ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सब कुछ थॉट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। India has given one great spiritual leader to this world. His name was Gautam Buddha. He lived 2500 years ago, and he said that whatever we think, we become. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ हो जाती है। So अगर जो गौतम बुद्धा जिसकी whose thoughts had affected 25% of the world, we need to understand, we need to follow his saying that सब कुछ thoughts के ऊपर ही depend करता है। It is very important कि हम अपने thoughts को ठीक रखें। Yes, any students so far? राही, अंकिता, केवल, जतिन, पलक, जानवी, विधि। How in your view how thoughts are important? Thoughts का रोल है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉइंट है थर्ड। तो गौतम बुद्धा ने ये भी कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है। हमारे थॉट्स हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, हमारे गोल को डिसाइड करते हैं, हमारी डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं। तो अगर जो मैं रिपीट करता हूँ नेगेटिव थॉट्स को, तो मेरा स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाती है। अगर जो मेरे पॉजिटिव थॉट्स हैं तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम रहता है, मेरा बैलेंस रहता है, सेल्फ कंट्रोल रहता है, मेरी लाइफ अच्छी चलती है। Yes, any student please say on this, what is your view? Am I audible, sir? Yes, what is your name? Rahi. Yeah, Rahi, please tell me how thoughts play an important role in our life. Thoughts are the thing that plays a very important role in our life. मतलब ऐसा बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। Yes. तो पॉजिटिव सोचे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट नेगेटिव सोचेंगे तो it will affect that thing. And Very basic good, very good. You're right. Thoughts are very much important. मतलब कभी आपको ऐसा थॉट आया लाइफ में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? यस सर, वो तो बहुत बार आता है। अच्छा, वो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बाद में आपको लगा कि ये तो ऐसे ही था। सॉरी सर, कभी ऐसा कोई इंसिडेंस आप कोट करना चाहेंगे कि कभी आपको लगा हो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, पर अल्टीमेटली इट वाज जस्ट ए थॉट? नो सर। हाँ, ठीक है। जैसा आपने कहा कि ऐसा कई बार होता है, तो whenever I take various sessions with the students and the public, they used to say कि सर मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, मेरे को हमेशा गलत लोग ही मिलते हैं। सो ये सिर्फ एक थॉट है। भगवान ने, इस नेचर ने, यूनिवर्स ने किसी किस्मत को गलत नहीं लिखा है। बस वो अपने थॉट्स की वजह से, अपनी सोसाइटी से उसको कुछ गलत थॉट मिले, उसको नेगेटिव थॉट्स मिले, और वो सोच उस थॉट्स को रिपीट कर रहा है, और उसकी लाइफ जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। सो वन शुड नेवर से दैट मेरे साथ गलत होता है, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मेरे से वो काम नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। वी शुड से इंस्टेड दैट मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, मैं जो काम करता हूँ वो पूरा कर लेता हूँ, मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। यस, एनी स्टूडेंट वुड लाइक टू से एनीथिंग ऑन दिस? कोई इसको काउंटर करना चाहेगा, इसके अगेंस्ट में बोलना चाहेगा? No, sir, I'd like to add something to this. Like you Yeah, rightly who is said, speaking? Sir Rinshi. Yeah. Yeah, sir, like you said, I mean, just like it is very usually said
that आप जैसा बोलोगे आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे. So even in our regular lives, the way, I mean, the kind of things that you believe and the kind of thoughts you have, हम वैसे ही vibes attract करते हैं, वैसे ही thoughts को attract करते हैं, and more or less हम वैसे ही people की तरफ we are drawn. I mean, if I believe towards negativity, I'll find people of that sort who will even cultivate that negative thought of mine further, or I might start overthinking that negative thought in my mind and make it bigger, or vice versa. If I am continuously focusing towards the good, and if I'm I'm having positive vibes, if I'm optimistic, I'll be emitting positive vibes, and I'll attract that kind of an energy, that kind of people around me who will even motivate me further to be more positive. So yes, good, yes, good, I mean, good. I appreciate. So जैसा हम नेगेटिव थॉट्स रिपीट करते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं, हम गलत शब्दों को बोलते हैं, हम गलत शब्दों को बोलते रिपीट करते हैं. जैसे many times I used to get interaction with the senior people in my relation and others. वो ये बोलते हैं कि बस मेरी किस्मत तो खराब ही थी, मेरे साथ ऐसा होना ही था दीपक, ये हो गया मेरे साथ. So वो इसलिए है क्योंकि हम सारी जिंदगी उन्हीं थॉट्स को रिपीट करते रहे. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. फेथ एंड बिलीफ सिस्टम की हम बात करते हैं. हमको कई बार फेथ हो जाता है, बिलीफ हो जाता है. मैंने काफी इंस्टेंसेस देखे ऐसे कि किसी को इस बात का विश्वास हो गया कि मैं अगर ये करूंगा, मैं अगर जो अंगूठी पहनूंगा, मैं अगर जो ये काम करूंगा, कुछ और किसी पंडित ने उनको एक काम बताया, तो मेरे को जो है सक्सेस मिलेगी, मेरी लाइफ ठीक चलेगी. तो ये एक तरह से कुछ केसेस में अंधविश्वास भी होता है, सुपरस्टिशन भी होता है. किसी पंडित ने या किसी ने आपको बोल दिया कि तू ऐसा करेगा तो ये सब ठीक रहेगा तेरी लाइफ में. तो ये एक्चुअली हमारे माइंड में कोई बिलीफ बैठ जाता है, फेथ बैठ जाता है, एंड हम सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो मेरा काम सब सही रहेगा. सिर्फ ये दिस इज ओनली ए साइंस ऑफ द माइंड कि हम अपने मन में कोई बात बैठा लेते हैं और हमारी डायरेक्शन लाइफ की ऐसे ही चलती है. सो फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया बिलीफ सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो मनुष्य ये सोचे, अगर जो हम ये सोचें कि मैं हमेशा लाइफ में सही रास्ते पे चलता हूँ, मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो सही है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, इंसानियत के लिए अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स के लिए अच्छा है, इस देश के लिए अच्छा है, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा है, आई एम आल्सो ऑलवेज ऑन द गुड पाथ. मैं एक गुड ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं हमेशा इंसानियत को फॉलो करता हूँ, ह्यूमैनिटी को फॉलो करता हूँ, तो मेरे को सक्सेस जरूर मिलेगी. मैं सही रास्ते पे चलता हूँ तो मेरे को सक्सेस जरूर मिलेगी. अगर हम इन बातों को रिपीट करें, इस फेथ को डेवलप करें, बिलीफ को रिपीट करें, तो मुझे लगता है कि हम अपना और दूसरों का बहुत फायदा कर सकते हैं. इसके बजाय कि हम ये सोचें, गलत बिलीफ सिस्टम को पालें कि मैं अगर जो ये काम करूंगा तो मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, और वो काम गलत है. कई बार आदमी को ये भी विश्वास हो जाता है कि मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा. तो इस पॉइंट को हमको समझना है. थोड़ा सा आगे चलते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं. किसी के अंदर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, किसी के अंदर नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं. पॉजिटिव इमोशंस क्या है? दैट आई एम फुल ऑफ लव. मेरे अंदर दूसरों के लिए अच्छी भावना है, स्नेह है. लव, होप, मेरे लव एंड काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, मेरे अंदर इस तरह की क्वालिटी हैं, इस तरह के इमोशंस हैं. मैं दूसरे के बारे में अच्छा सोचता हूँ. और नेगेटिव इमोशंस किसी में होते हैं, जैसे एंगर, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी होती है हमको. हेट्रेड, मेरे को दूसरे से नफरत होती है, मेरे को लगता है कि यार ये दूसरा मेरे लिए अच्छा नहीं है. फिर फियर, दिमाग में फियर है. सुपरस्टिशन है. तो नेगेटिव इमोशंस दिमाग में होते हैं तो हमारी लाइफ जो है गलत दिशा में जाती है. पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो हमारी लाइफ जो है अच्छी दिशा में जाती है. अब कोई कहे कि आप कहें कि मेरे अंदर एंगर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको मैं कंट्रोल कैसे करूं? तो माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस एक वर्ड है. पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब होता है कि अगर जो मैं किसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करता हूं तो मैं उसको याद कर लेता हूं और मेरे अंदर वही बस जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं ये रिपीट करूं
कि मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा आता है। कई बार लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं यार मेरे को ना गुस्सा ज्यादा आता है, मेरी बात का बुरा मत मानना। We should never repeat these words. Instead, we should say that मैं शांत रहता हूँ, मैं शांत प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है। सो आपको कोई गलत हैबिट है, मान लो कोई आपको बैड हैबिट है, तो आप रिपीट कर सकते हैं अपने आप को। जैसे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, आई कैन रिपीट टू माई सेल्फ that my mind is free of frustration, my mind is free of anger, my mind is free of jealousy, my mind is free of hatred. I am hardworking, I love others, I like others, I appreciate others, I am full of love, joy, peace, happiness, wisdom, I have good stamina. I should repeat positive affirmations for a good life. I like others. कई बार मैं दूसरे से नफरत करता हूँ, तो मैं दूसरे से नफरत करता हूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। तो मैं आई कैन से टू माई सेल्फ आई लाइक अदर्स, मैं सभी को मैं पसंद करता हूँ, सभी अच्छे हैं दुनिया में। जितना मैं गलत सोचता हूँ दूसरे के बारे में, अपने बारे में, उतना मेरा स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। यस, एनी स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट वही एक भी बार नहीं बोले, बोलने की कोशिश करें। पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को आप समझ पाए। अंकिता, पलक, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हेलो स्टूडेंट्स, या यस सर, केवल दिस साइड। हाँ केवल, केवल इन चीजों का लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है कि दूसरे के लिए मान लो मैं गलत सोचता हूँ तो और दूसरे के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, तो दोनों में से कौन सा अच्छा पॉइंट, कौन सी अच्छी बात है? हाँ, दूसरों के लिए अच्छा सोचना सर, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं कभी एक बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंस हुआ था कि मैं ऑफिस में सर ने मेरे को डांट दिया था किसी गलती पर, तो बार बार मैं वही रिपीट कर रहा था अपने बारे में कि ये मैं ऐसी गलती क्यों की या ऐसा सब कुछ। फिर क्या हुआ कि आगे ऐसे कोई मांगने वाला इंसान बैठा है या ऐसे बेकर और वो सब, तो आई जस्ट गिव हिम अ फूड, मतलब सामने ही एक ठेला था जहाँ पे फूड्स और वो सब मिलते रहते हैं, तो वो मैंने परचेज किया था और उसको दिया था। तो आई फील पॉजिटिव इमोशन, मीन्स किसी की तरफ एक लव की मतलब होती है ना जो पॉजिटिव वाइब्स, और वो सब हम फील कर सकते हैं सर। फिर ऑटोमेटिकली हमको लगा कि जो नहीं भाई जो हुआ वो सब अच्छे के लिए होता है, उस गलती से मैं ये सीखूंगा तो मैं आगे जाके ये गलती वापस नहीं करूंगा। हो सकता है कि इसका फ्यूचर में जो बड़ा लॉस होने वाला हो वहीं पे टल गया हो छोटी सी गलती करके। वेरी गुड भाई, आई अप्रिशिएट। आपने अच्छी बात कही कि दूसरे के लिए मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो मैं अच्छा फील करता हूँ। यस सर, दिस इज वेरी गुड। सो हमको दूसरे के लिए कभी भी गलत नहीं सोचना है, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे, अपने लिए भी अच्छा सोचे, तो लाइफ अच्छी निकलती है। अगर जो आपको लगता है आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है तो आप उसको बार बार रिपीट करके उस इमोशन को दूर कर सकते हैं। कि अगर जो आपको किसी को देख के गुस्सा आता है तो यू कैन से दैट नहीं, आई लाइक हिम, ये अच्छा है। ठीक है, अपने को भी अच्छा बोलें, दूसरे के बारे में भी अच्छा बोलें, तो हम धीरे धीरे वट एवर वी रिपीट कंटिन्यूसली वो हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है। तो हम पॉजिटिव को ही बोलें, बार बार अपनी बीमारियों को रिपीट ना करें। मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, मेरा गला खराब हो जाता है, मेरे को खांसी रहती है, ये चीजों को रिपीट ना करें। वी शुड रिपीट दैट मैं हमेशा हेल्दी रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। एंड वट एवर गुड यू कैन रिपीट फॉर योरसेल्फ, रिपीट इट कंटिन्यूअसली। किसी भी स्टूडेंट को कुछ बोलना है तो आगे बोल सकते हैं। अभी जैसे टाइम हुआ है 9:25, कैन यू गाइड मी हाउ मच 9:30 तक ये Shall I speak, sir? Yeah. First of all, can you tell me up to when we can do this? Sorry, sir. हमारे पास कितना टाइम है अभी? Divya? Divya is there? Divya? Yes, sir. Yes, sir. कितना टाइम है हमारे पास अभी? So we have time. अच्छा, चलिए, कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहे थे? Yes, tell me. Yes, Jay this side, sir. Shall I speak now? Yeah, please. Yes, I would just like to add up some points, and I would like to second Keval and you, sir, because when we speak or when we think so much about another person or ourselves, so I believe that we ourselves don't know
perfectly about ourselves and another person, another being, about whom we are talking about, or about whom we are thinking about, right? So we just make assumptions about ourselves and other people, and we think on basis of the same, right? And as you rightly said, that our thoughts affects our actions, and that our actions affects our regularities and routine. Yeah, I appreciate. Yeah, I appreciate. आपने सही कहा एकदम. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन. फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन. He used to say that imagination is very important for human being. Imagination and visualization. अगर हम अपना गोल बनाते हैं कुछ, if we have any goal and we visualize that goal, we imagine that goal. अगर जो हम अपना destination को, goal को, अपने future को visualize करते हैं, imagine करते हैं, तो it may happen, it can happen. और कई बार हम गलत चीजों को विजुलाइज करते हैं, नेगेटिविटी को विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं और नेगेटिव हो जाता है. So imagination and visualization play a very important role in our life. If we have some goal, we need to imagine it, visualize it. It really helps towards moving towards a good life. If I visualize a good life for me, it can become reality, my dear friends. This is true. This is true. This is true. आगे चलते हैं. Goals, professional versus spiritual goal. My dear friends, इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग अपना गोल बनाते हैं. But let me tell you, it is very important for the human beings to make their goals. The human beings are goal-oriented mechanism. Our mind works when we have some goals. अगर हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं जाएगी. It is like that if a ship, it doesn't have any direction, the ship may not reach its destination. So same in our life. If I do not have any goal, that मेरे को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, that my life may not be that successful. So my dear friends, make your goals today itself. आज ही सोने से पहले अपना एक गोल बनाएं कि मेरे को 1 साल बाद मेरे को कोर्स पूरा कर लेना है, 2 साल बाद मेरे को कोर्स पूरा कर दो. Whatever your target, whatever the target is feasible. स्मार्ट गोल्स होना चाहिए आपका. स्मार्ट माने स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स. आपको गोल बनाना है अपना कि 1 साल बाद मेरे को यहाँ पहुंचना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर गोल्स टुडे इटसेल्फ and repeat that goal daily before sleeping. अपने गोल को रिपीट करें, अपनी डायरी पे, अपनी बुक्स पे लिख के रखें कि मेरे को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ पहुंचना है. अपना प्रोफेशनल गोल बनाएं, फिक्स करें आपको कौन सी कंपनी में काम करना है, किस तरह की कंपनी में काम करना है, कितनी सैलरी आपको चाहिए. उन चीजों को बोलें, रिपीट करें, अपना गोल लिखें. And then I always say that apart from making your professional goal, make your spiritual goal. Yes, any student, if he or she can guide me, what could be our spiritual goal? And let me tell you, spiritual goal is very important for human beings. Yes, any student? It is easy to understand कि मेरा professional goal क्या होगा. मेरा spiritual goal क्या हो सकता है? Any student? Yes, please come forward. I'm audible. Yes, sir, you are perfectly audible. Jay, this side, I would like to just ask you a question regarding like, I would just like to add, I would just like to ask you a question regarding making our goals, may it be professional or spiritual. So can I ask now, or shall I ask? Right now, please. You can ask right now. As you ask about making our goals or setting our goals. So if we look ourselves right now, right? If I'm doing I'm in CA final, right? So if I have to make a goal of 3 years down the line, right? If जैसे मुझे अगर कुछ अभी से गोल बनाना चाहिए, जैसे आपने बोला कि 3 years या 4 years down the line कि मुझे अगर कुछ करना है बाद में, but इस चीज को मैं
इस चीज पे मैं रिलाई कैसे करूँ कि मेरे पास उस 3 साल 4 साल के बाद के सर्कमस्टेंसेस मालूम नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आगे जाके एग्जैक्टली किस सिचुएशंस के थ्रू गुजरना है. तो how would be I able to set my goal right now currently? My dear friend, never think about that life में कुछ गलत होगा. आपने सोचा कि 3 साल बाद मेरी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए कि मैं अपना गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा या whatever. Never think, let that thought come to your mind. Just make your goal कि after 3 years मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा. बस ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए. आप कहना शुरू कर दें कि 3 साल बाद मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी का CFO बन जाऊंगा, दैट मे नॉट बी पॉसिबल. But make your goal that after 3 years, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years, आप उस चीज को कभी ना सोचे लाइफ में कि हो सकता है कि उस समय मेरे साथ क्या सिचुएशन हो. अभी आजकल कोविड है, उस टाइम कुछ और आपदा आ जाए, उस टाइम कुछ और प्रॉब्लम आ जाए. Never think that. Just think that after 3 years I will be able to complete my course and I am working in a good organization as whatever designation you have in your mind. आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? My dear friends, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में अभी तक जितनी भी सक्सेसफुल हिस्ट्री हुई है, महात्मा गांधी से लेकर हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ये सब इसी थॉट पर चल के सक्सेसफुल हुए हैं. That they were making their goals. They were making their goals and they got their success. Yes, any other student? Yes, please come forward. And what could be my spiritual goal? Hello, am I audible? Yes, sir. हाँ, और कोई बोल सकते हैं? Divya, you can say what could be my spiritual goal? Yes. हेलो. Yeah. सर. Yeah. सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप अगर इस साइड मूव करके बात करोगे ना तो सुनाई दोगे. आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज, बट आपका जब मुंह साइड होता है ना तो माइक्रोफोन में आवाज नहीं आती आपकी ठीक से. चलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब Yes, आ रही है sir. सर. थैंक यू सो मच सर. चलो ठीक है. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. नहीं, इट इज ओके यार. आपने बताया तो अच्छा रहा ना. सभी को इसका everyone will get benefited to it. Yes, anyone would like to say what could be my spiritual goal? What could be the spiritual goal of human beings? और मैं बताऊं. Hi sir, good evening. Shivam this side. Can I speak? Yeah, please. Sir, according to me, spiritual goal should be ultimately खुद को अच्छे से पहचानना. इंसान अगर मेडिटेट करता है तो खुद को पहचानने के लिए करता है. अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, अपने अंदर की पावर्स है, उसको पहचानने के लिए मैं कितना बेहतर बन सकता हूँ. और चाहे हर रोज 1% की इम्प्रूवमेंट हो, बट एक तरीका होता है. अगर मेडिटेट करते हैं, इट मे बी थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक, इट मे बी थ्रू वर्शिपिंग गॉड, वेरियस मंत्रास, बट अल्टीमेट गोल इज टू अचीव द सेल्फ लव. अपने आप को पहचानना. सो दैट शुड बी अल्टीमेट गोल. अगर मैं खुद को ही नहीं पहचान पाऊंगा, खुद को नहीं प्यार करूंगा, तो सामने मैं कैसे पॉजिटिव वाइब्स दे पाऊंगा किसी को, या एनी क्वालिटी, रिस्पेक्ट, लव, एनीथिंग. वेरी गुड. आई अप्रिशिएट. इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करता रहूं. आप लोग बोले तो आपने अच्छा बोला कि मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि मेरा स्पिरिचुअल गोल ये है कि मेरे को प्रोफेशनल गोल के साथ साथ अपना एक गोल बनाना है कि मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है. आई वांट टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग. आई नीड टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ. मेरे को अपने आप को पहचानना है, अपने आप को डेवलप करना है कंटिन्यूसली एक अच्छे रास्ते पे. अगर जो आदमी ने अपने मन में एक बात बिठाई अपने दिमाग में कि मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है, अपने आप को आगे ले जाना है, तो वो नेचर, गॉड, यूनिवर्स उसको उस रास्ते पे ले जाता है. अगर जो मैं डिसाइड ही नहीं करता तो गॉड, नेचर, यूनिवर्स हमारी हेल्प नहीं करते. तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 3 साल बाद, 4 साल बाद प्रोफेशनली सक्सेसफुल बनना है एंड साइमल्टेनियसली मेरे को एक अच्छे रास्ते पे चलना है, एक अच्छा इंसान बनना है. मैं अपना सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, करूँ. अभी आपने ये बहुत अच्छा बोला, सेल्फ रियलाइजेशन हर एक मनुष्य का एक गोल होता है. ये इनहेरेंट गोल है ह्यूमन बीइंग्स का, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े. कई बार आपने देखा होगा कुछ मनुष्य को, कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरा पूर्व जन्म का कुछ रिजल्ट है या व्हाटएवर.
तो वैसे थॉट्स कभी नहीं होने चाहिए। हमको अपने आप को पहचानना चाहिए। हर एक मनुष्य के अंदर एक इंसान है, उसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को हमको पहचानना है, बाहर निकालना है। बल्कि ऐसा ही बोलते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। उस भगवान को हमको पहचानना है, उसको बाहर निकालना है। सेल्फ रियलाइजेशन इसको बोलते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन। माय डियर फ्रेंड, मेडिटेशन एक तरीका है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है अपने मानसिक विकास करने का, हमको अपने माइंड को डेवलप करने का। मेडिटेशन क्या है कि जब हम लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मेरा माइंड जो है फॉर दैट टाइम थॉटलेस हो जाता है, थॉट्स कम हो जाते हैं। तो जब मेरे माइंड में थॉट्स कम हो जाते हैं, एट दैट टाइम मैं एकदम शांत बैठा हूँ अकेला एक ओपन प्लेस में या एक अंदर कमरे में, माइंड के अंदर थॉट्स थॉटलेस है, then I start repeating my positive affirmations to me that Deepak, after 5 years you have become successful, you have achieved your goal, whatever आपने जो अपना टारगेट रखा है। आपके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसको शांत बैठकर प्राणायाम करने के बाद रिपीट कर सकते हैं अपनी क्वालिटीज को। इसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। दैट आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम फुल। आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होती है तो आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई एम फ्री ऑफ एंगर, आई एम फ्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई कैन डू दैट वर्क। मैं ये काम को कर सकता हूँ, दुनिया बहुत अच्छी है, मैं दुनिया में मैं आगे बढ़ता रहूंगा, अपनी मंजिलों को पाता रहूंगा। सही काम रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी एसोसिएशन, एक अच्छा कॉर्पोरेट, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, यू कैन रिपीट टू योरसेल्फ व्हाइल मेडिटेटिंग। सो मेडिटेट, मान लो आपको कुछ भी लाइफ में परेशानी है, कोई मान लो फिजिकली यू आर नॉट फिट, आपको ऐसा लगता है, और मेंटली यू आर नॉट फिट, कि कोई आपको डिस्टर्बेंस लगती है लाइफ में, तो मेडिटेशन में बैठकर आप उस चीज को रिपीट करें कि ये धीरे धीरे मेरी लाइफ ठीक हो रही है, ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन माय लाइफ, मेरे थॉट्स अच्छे हैं, मेरा सराउंडिंग्स अच्छी है, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ये मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, इन सब को फॉलो करके हम अपने माइंड का विकास कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट को जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, हम अपना सब्जेक्ट मैटर के बारे में बुक्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कंपनी लॉ एंड ऑल, हमारे माइंड का विकास होता है। इसके साथ साथ हम जरूरी है कि हम कुछ सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। we need to read some good books written by good authors, great spiritual leaders, great scientists, great authors, etc. जब हम बुक्स पढ़ते हैं हैविंग गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, हमारे माइंड का अच्छा विकास होता है। क्योंकि अभी हमने एक सेशन किया, you may not be able to retain the wordings of this session after say 1 month, लेकिन आपने एक बुक अगर जो एक खरीदते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन बुक ऑन गुड पॉजिटिव थॉट्स, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ा हो जाता है, जादू हो जाता है। ये एक बहुत बढ़िया बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक है। तो हमको रोज आधा घंटा मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, और किसी बड़े आदमी की अगर हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं रोज आधे घंटे के लिए, तो दैट विल हेल्प ए लॉट फॉर हमारे मानसिक विकास के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ बुक्स पढ़ें डेली, सोने से पहले या जैसे भी आधा घंटा, लेकिन बुक वही पढ़ें जो वर्ल्ड फेमस बुक हो। आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं व्हाट आर द गुड सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल बुक, गुड थॉट्स बुक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फॉर मानसिक विकास के लिए मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस किए। अब माइंड से रिलेटेड जो नेक्स्ट है मेरा पॉइंट, उसमें मैं 5 मिनट माइंड से रिलेटेड किसी को कुछ डिस्कस करना है तो क्विकली हम डिस्कस कर सकते हैं, थॉट्स के बारे में, माइंड के बारे में, गोल के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। यस फ्रेंड्स, क्विकली any view, any points, any question? Sir, Friends, yes.
कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि अपने माइंड को जो है ना, जो थॉट्स है उसको डाइवर्ट करने के लिए हम कोई अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लाइक अपने फैमिली के साथ बस बैठ सकते हैं। और सबसे बेस्ट आइडिया जो है ना वो तो है कि कोई अगर आप छोटे बच्चे के साथ खेलोगे ना, तो उसकी स्माइल जो होगी उसके साथ खेलते खेलते आप खुद भी मतलब अ, अपना जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है थी, वो कन्वर्ट हो जाती है एडवाइस में। वेरी राइट, आई अप्रिशिएट, आपने सही कहा। यस, एनी अदर स्टूडेंट वुड लाइक टू से एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? Yes, sir, I would like to say. या सर एक्चुअली फॉर मी अगर मोटिवेशन है, एक सेल्फ मोटिवेशन इंसान का एक परमानेंट होना चाहिए। अगर मैं 10 मिनट की मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, उसके बाद अगर 2 घंटे तक मोटिवेट रहता हूँ, दैट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द अदर डे। एक मेरे पास एक फिक्स होना चाहिए मोटिवेशन, एक जरिया होना चाहिए जिसको मैं देख के अगर कुछ भी गोल हो, आई कैन रिलेट टू इट। यस, मेरे को इससे मोटिवेट मिलता है और मैं इसके जरिए ही काम करूँगा आगे, रादर वेरी देन गुड, मतलब एक वीडियो देख के ही सब मेरा मोटिवेशन। आई अप्रिशिएट। इसीलिए मैं आई ऑलवेज रिकमेंड रीडिंग बुक्स। हैव वन बुक विद यू। जब भी आप अकेले हैं उस बुक को पढ़ें आधे घंटे के लिए, दिन में एक बार आधे घंटे के लिए पॉजिटिव थॉट्स की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। यस, एनी अदर स्टूडेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइंड, हाउ टू, हम अपने मानसिक विकास कैसे करें स्टूडेंट्स। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी शारीरिक और मानसिक विकास। अगर जो एक मनुष्य का फिजिकल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक है, तो मुझे नहीं लगता उसको लाइफ में कोई परेशानी आएगी। Although I am just going to discuss the last point, which is also very important. So हम मनुष्य को अपना शारीरिक और मानसिक विकास करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला अभी कि मैंने एक वीडियो देखी, मोटिवेशन वीडियो देखी, या हम लोगों ने अभी एक मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन अटेंड करी, लेकिन हो सकता है 10 दिन के बाद किसी ने मेरे को कुछ कहा और मेरे मन के अंदर एक नेगेटिव थॉट चला गया और मैं डर गया, तो वो मोटिवेशन खत्म हो गया। तो सेल्फ मोटिवेशन ये जरूरी है कि हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें कि यार कितनी भी परेशानी आ जाए, कोविड आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, कुछ और विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, मेरा अल्टीमेट जो गोल है मैं उसको पा लूंगा। मैं अल्टीमेटली मेरे को सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली। तो इसके लिए मैं ऑलवेज रिकमेंड रीडिंग बुक्स। तो शारीरिक और मानसिक विकास हम लोग अपना करते रहें। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी है कि हम अपना आध्यात्मिक विकास भी करें, हम अपना स्पिरिचुअल विकास भी करें। वो क्या है? हम अपने हमारे हम एक इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर एक सेल्फ है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसानियत है, एक पोटेंशियल है, या कई कुछ लोग इसको, बड़े लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे अंदर खुद भगवान बैठे हुए हैं। तो हमको उस भगवान को, उस सेल्फ को, उस इंसान को पहचानना है। अगर जो मैं कोई गलत काम करता हूँ और आपने कहा, काफी लोग इसको बोलते हैं, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंदर भगवान होते हैं, और मैं कोई गलत काम करता हूँ, मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो मेरा सेल्फ है, मेरा जो इंसान है, उसकी उन्नति नहीं होती, उसकी प्रोग्रेस नहीं होती, उसका विकास नहीं होता। सो इसीलिए आप कभी भी, आप बचपन से हम पढ़ते हैं, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि मनुष्य को हमेशा सही रास्ते पे रहना चाहिए, सही कदम उठाने चाहिए। उससे मेरे अंदर का जो भगवान है, जो सेल्फ है, एक इंसान है, उसका विकास होता है। और हर एक मनुष्य का ये दायित्व है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं। उसका विकास करना मेरे को बहुत जरूरी है, और उसका विकास करने के लिए जरूरी है कि मैं, इसमें एक पॉइंट है पॉजिटिव इंटरेक्शंस, कि मैं दूसरों से इंटरेक्ट करूं पॉजिटिव वे में। मान लो मैंने किसी से मिला, किसी शादी में, पार्टी में, ऑफिस में मिलता हूँ, लोगों से मैं मिलता हूँ, कई बार मैं उसके लिए, सामने वाले के लिए गलत शब्द बोलता हूँ, तो उससे मेरा विकास नहीं होता। लेकिन मैं किसी से मिला, किसी ने कोई अच्छा काम किया, मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया, दीपक यू हैव रियली डन ए गुड जॉब, तो इससे दोनों का विकास होता है। मैं किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करता हूं, तो इससे दोनों का नुकसान होता है, डेफिनेटली।
तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस, ये मनुष्य के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, बात करे और एक दूसरे की अप्रिशिएशन करे, पॉजिटिवली हम दूसरे से इंटरेक्ट करें। जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा विकास होता है। लव, लव का मतलब है स्नेह। मैं दूसरों के साथ, मेरे मन में स्नेह रहता है कि ये ह्यूमन बीइंग अच्छा है। जैसे पेरेंट्स का बच्चों के प्रति लव होता है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स का दूसरों के प्रति लव होता है, तो उसका अच्छा विकास होता है, उसके इंसान का जो अंदर भगवान है, सेल्फ है, उसका विकास होता है। पावर ऑफ गिविंग, देने में बहुत शक्ति है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग के अंदर भी कुछ क्षमता है। आपको मौका मिले किसी दूसरे को कुछ दे सकते हैं तो देने की कोशिश करें। देखिए बहुत अच्छा, जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैंने गरीब को खाना खिला दिया तो मेरा को बहुत अच्छा लगा, तो आप इस तरह का कुछ भी करके देखें, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं उसका विकास होता है उससे। हेल्प अदर्स, कभी दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जाके अपना कहीं पर गांव में जाएं और मदद करना शुरू करें, बस एक हेल्पिंग एटीट्यूड है। अपने घर से शुरू होता है वो हेल्पिंग एटीट्यूड। अपने घर में जो छोटे हैं उनकी हेल्प करें, बड़ों की जितना आप हेल्प कर सकते हैं उतनी करें, जितना हेल्प कर सकते हैं उतनी करें, अपने को कष्ट ना दें पर। ये जो स्पिरिचुअल, इसको स्पिरिचुअल विकास बोलते हैं, आध्यात्मिक विकास बोलते हैं, कि मनुष्य सही रास्ते पे रहे। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत बड़े लोग हुए हैं, स्पिरिचुअल लीडर हुए हैं, महान लोग हुए हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत महान लोग हुए हैं। जब मैंने उन सब महान लोगों के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि हर एक मनुष्य का जो भी ग्रेट महान है, स्पिरिचुअल लीडर है इंडिया में या वर्ल्ड में, उस सब के अंदर ये क्वालिटीज थी जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी लिखी है। वो बिलीव करते थे ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में। महात्मा गांधी इंसानियत के ऊपर, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंसानियत के प्रति अपना दायित्व निभाया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने उसको अपना एम बनाया और वो करते 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 कहाँ से कहाँ पहुंचते। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जो आदमी, मनुष्य सही रास्ते पे रहता है तो उसका आध्यात्मिक आंतरिक अंतर विकास होता है और उसकी लाइफ अच्छी चलती है, उसको स्ट्रेस कम होता है, प्रॉब्लम्स कम होती हैं, लाइफ में कुछ भी आपदा आए, नेचर, यूनिवर्स उसका ध्यान रखती है, गॉड उसका ध्यान रखते हैं, अगर जो मनुष्य सही रास्ते पे चलता है तो। अगर हम मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता रहे माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता मनुष्य को कभी प्रॉब्लम आएगी, आपको कभी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी कोविड है, कोविड में अगर जो मनुष्य ने अपना शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल विकास किया हुआ है तो कोविड उसको कम परेशान करेगा, क्योंकि उसके अंदर फियर, आई एम फियरलेस, मैं फियरलेस हूँ। कई बार मैं डर जाता हूँ, कई बार मनुष्य डर जाते हैं किसी चीज को लेके, तो हम अपने को विश्वास दिलाना जरूरी है कि मैं फियरलेस हूँ, मैं फियरलेस हूँ, मेरे अंदर करेज है, साहस है, मैं अपने मंजिल को पाऊंगा, मैं अपनी एंड को पाऊंगा, मैं अपनी डेस्टिनेशन को जरूर, मेरे को डेस्टिनेशन मिलेगी। तो जिसके अंदर जितना विश्वास है, जितना डिटर्मिनेशन है, जितनी विल पावर है, जितना अच्छी सोच है, वो उतना ही सक्सेसफुल है। और अच्छे रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है, एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। मेरे को इतना ही कहना था। अगर जो हम इस रास्ते पे चलें तो हमको लाइफ अच्छी मेहनत होती है। अगर जो हम कहते हैं कि इस यूनिवर्स में एक पावर है, गॉड है, भगवान है, हम सही रास्ते पे चलते हैं तो जरूर हमारे को अपनी मंजिल मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। कि हम लोग कुछ एक ना एक क्वेश्चन जरूर डिस्कस करें। इस प्रेजेंटेशन में किसी भी स्टूडेंट ने एक बार भी नहीं बोला है, कुछ ना कुछ जरूर बोले आपने जो भी सुना है उसके बारे में। यस, द फ्लोर इज ओपन नाउ, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशंस। यस, 5 minutes, we have only 5 minutes. Yes. Hello, Divya. Yes sir, yes sir. Yes, any students would like to say anything about session? हमने क्या सीखा सेशन में, क्या डिस्कस किया, आपको क्या लगा, कैसा लगा, कुछ भी कहना चाहे तो कह सकते हैं।
Otherwise, Divya can close down the session. और दिव्या कुछ कहना चाहे? Yes, any student please? Yes, I will definitely say. Yeah. कौन दिव्या बोल रही हो अभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ दिव्या, आप ही बोलिए। चलिए, कैसा रहा? क्या आपको लगा? कैसा क्या आपने इसको ग्रैस्प किया? सर, काफी कुछ जानने को मिला आपसे भी एंड बाकी सब लोगों से भी, एंड लाइक सेशन काफी अच्छा था, काफी पॉजिटिव वाइब्स आए। चलिए, गुड। एनी अदर स्टूडेंट? एनी अदर स्टूडेंट कुछ कहना चाहें तो डिस्कस कीजिए। यस सर, सो थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली जो जब सेशन चालू होने वाला था उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब था, क्योंकि अभी जो ड्यू डेट्स और वो सब अभी तो फिलहाल बढ़ गए, लेकिन नेटवर्क ऑफिस अभी भी फिलहाल चल रहा है। तो आई वाज लिटिल बिट क्योंकि अभी लेक्चर और वो सब तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो ऑफिस वर्क और वो सब रहता है फैमिली टाइम और उसमें ही निकल जाता है। तो लिटिल बिट स्ट्रेस, बट नाउ आई हैव अ कीज टू फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। अपने मतलब खुद को बाहर कैसे निकाले और वो सब अभी सीख लिया है सर। सो थैंक यू सो मच, एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। क्या नाम है आपका? केवल सर। गुड। चलो दिव्या, ये केवल जी ने तो हमारे को वो दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि उनको थोड़ा बहुत ठीक नहीं लग रहा था, उन्होंने सेशन के बाद उनको ठीक लग रहा है। चलिए, एनी अदर स्टूडेंट वुड लाइक टू शेयर एनी एक्सपीरियंस? और जो अपना शुरू में यस सर आई वुड लाइक टू शेयर। एक्चुअली सर मेरे नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं ऑलरेडी, एग्जाम सर पे है तो स्ट्रेस कितना ज़्यादा होता है। तो थैंक्स अ लॉट सर, मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। ऑल थैंक्स टू यू फॉर द पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, एंड आई विल रियली कैरी फॉरवर्ड जो भी आपने सब बताया फर्दर, बी इट द मेडिटेशन और द स्पिरिचुअल गोल्स, एवरीथिंग। ग्रेट। गुड। थैंक यू सर। चलिए, एनी अदर स्टूडेंट प्लीज? थोड़ा सा हम जब अपनी बात को शेयर करते हैं, कह लेते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। हम ये सोचते हैं कि मैंने भी कुछ बोला। तो ऑलवेज कभी भी आप कोई सेशन अटेंड करें, कोई भी वेबिनार सेमिनार अटेंड करें, तो कुछ ना कुछ बोलें, अपने व्यूज को प्रकट करें। यस, एनी अदर स्टूडेंट? लास्ट स्टूडेंट Shall I speak, sir? लास्ट, या प्लीज। यस एक्चुअली सर, आपने बोला कि केवल ने हम लोग को सर्टिफिकेट, बट एक्चुअली सर आपने हम लोग को सर्टिफिकेट दे दिया कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाटएवर वी थिंक, राइट? व्हाट वी आर एबल टू। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है कि हम लोग को पता रहती है, बट हमें कभी सोचने का, हमें कभी महसूस करने का टाइम नहीं मिलता, ना हम इन सब चीजों के बारे में कभी सोचना चाहते हैं। लाइक इतनी विलिंगनेस होती नहीं हमारी कि हम लोग इन सब, क्योंकि हम लोग हमारे काम में इतने बिजी होते हैं कि वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली। हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छी तरह से, लाइक एक होता है ना कि improving ourselves and improving the things we do, the way we operate, वो चीज हम कभी सोचते नहीं है। बट थैंक यू सो मच सर, आपकी आज बातों ने ये तो हमें रियलाइज करवाया कि हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा, और कैसे हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा रहा। आई रियली एंजॉयड द सेशन विद यू। आई रियली लाइक्ड ऑल द स्टूडेंट्स, एंड आई विश ऑल द सक्सेस, हैप्पीनेस एंड परफेक्ट हेल्थ टू ऑल द स्टूडेंट्स। Great session, Divya. You can now close. Yes, sir. Thank you so much, sir. The session was so fruitful and interactive. I would like to invite Rahi Rathod to propose vote of thanks. Yes, Rahi, unmute कीजिए आपको, अपने आप को unmute कीजिए राही। Sorry, sir. Good evening, everyone. I, Rahi Rathod, on behalf of Ahmedabad branch of Vikasa, feel honored and privileged to extend my vote of thanks to CS Deepak Jain sir for sharing his precious time and knowledge with us. Thank you, sir, for enlightening us in different ways for managing stress and managing life. I would also like to thank CA Fanil Shah sir, CA Harit Dhariwal sir, and CA Anjali ma'am, and the whole Vikasa team
for taking wonderful initiative for and arranging such a fruitful session in the series of Paramarsh. Last but not the least, I would also like to thank all the participants for showing their interest and sincerely attending the session. So thank you, sir. Thank you, Rahi. Thank you. Thank you, Divya. Thanks to all. Thanks to all. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank I would you. also Thank you. like to invite Thank I you. would also like to invite our Vice Chairman of Ahmedabad branch of Vikasa, Jaiprakash Motwani, for the concluding remarks. Deepak Jain sir, with your permission, I would just like to interact with students for just a minute or two, a couple of minutes. Please Thank you go so forward. much, sir. Thank you so much. Sir, today's session was really amazing. And I would also, and I'm really sorry, sir. I'll just ask students about their feedback. Actually, I want to talk something about something, but I just need a student's interaction. If anyone can just share it once again, how was the session? And not only this sessions, we are running with this series Paramarsh since I guess this is 11th session, right, Divya? This is 10th session. This is 10th session, right? So we are already completed with 9 sessions. How all these sessions were? Yes, we have participants. We have Rahi, Harsha, Keval, Mukta, Shivam, Shruti, Akshat. Any one of you can just tell me about your feedbacks, please. I just really need it. Yes, Jay, I would like to add up. First of all, thanks and big congratulations to your team and to you for organizing such fruitful events. And I think these events are such the need of the hour. ये नहीं होंगे तो I think we need knowledge, motivation, everything. So thanks to you all for giving us such opportunities to have an interaction with such eminent faculties and personalities. Thank you so much, Shivam. Anyone else would like to speak? Hello. Yes. Yes, जय भाई. So thank you so much. जितने भी सीरीज करवा रहे हो, मैं तो यही बोलूंगा कि सब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो टच हो ही रही है. अभी इससे पहले आपने प्रोफेशनल रिटायर और वो सब किया था ऑफिस में, मतलब क्लाइंट के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं तो मतलब टच होती है कि हमको परफेक्ट बनाती है अगर हम ये सब सीखे तो. Yes. Thank you. Rightly said. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ये मतलब और जीवन में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट है जिसमें आपको परफेक्ट होने का मौका मिल रहा है. तो थैंक यू सो मच. और आज के सेशन के लिए तो थैंक यू सो मच भाई. Thank you for Deepak Jain sir for just coming among us and sharing his knowledge, his views with us. ये इंटेंशन मेरा इस बात का पूछना एक ही था. मैं कोई अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं विकासा का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं दीपक सर का प्रमोशन नहीं कर रहा. दीपक सर इज डूइंग इट फॉर फ्री, विकासा इज डूइंग दिस फॉर फ्री. हम लोग, जैसे शिवम ने बोला, जैसे केवल ने बोला कि हम लोग को बहुत सब चीजें जानने मिली. आज दीपक सर ने एक ही बात बोली कि हेल्पिंग अदर्स, राइट? डोंट यू थिंक कि हम लोग को ये अच्छी बातें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए? हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं ना. हम लोग घूमने जाते हैं, अकेले जाते हैं क्या कभी? हम लोग को जाना है हैंग आउट करने, हम लोग अकेले गए क्या कभी? हम लोग को 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए. हमारे फ्रेंड सर्कल है, इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है. इस जमाने में सोशलाइजेशन का कोई लिमिट ही नहीं है. हम लोग कहाँ से कैसे जुड़े हुए हमें भी नहीं पता. सो हमें इतना सेल्फिश बनना चाहिए कि हम अकेले आज इस सेशन को सुन रहे हैं. विकासा एक स्टूडेंट एसोसिएशन है अहमदाबाद में. 35,000 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, राइट? अगर दीपक सर ये बातें बोल रहे हैं, इतना अच्छा अगर वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिले, राइट? विकासा alone, विकासा इज, आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस, कि विकासा वो 6 लोग की कमेटी नहीं है जो ऑफिस बैरर्स है. विकासा इज स्टूडेंट एसोसिएशन, राइट? तो मैं बस इतना बोलूंगा तुम सब लोग को कि आज जो तुमने सेशन अटेंड किया, आज मेरे को भी सच में बहुत मजा आया. मैं लास्ट के 9 सेशंस और भी अटेंड किए. आप सब कुछ लोग हैं जो हर सेशन में होते, मैं देखता हूँ. आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट देम to tell their friends about this series, right?
हम लोग का कोई बेनिफिट नहीं है। 1 साल के लिए मैं हूँ, 1 साल के लिए दिव्या है, दीपक सर और कई सारी जगहों पे सेशंस लेते हैं, बट ये फर्क तुम लोगों को ही पड़ेगा। देख, मैं अगर सुन रहा हूँ तो मुझे पड़ेगा, मैं 4 लोग दोस्तों को लाऊंगा तो मुझे, हम लोग इतनी सारी चीजें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, हम ये क्यों नहीं करते शेयर? कोई मेहनत नहीं लगती हमें इस चीज में, कोई मेहनत नहीं लग रही, और ये उनकी भलाई के लिए। वो लोग कहीं ना कहीं आज जैसे केवल ने बोला, शिवम ने बोला, मैंने बोला, दिव्या ने बोला कि ये चीजें हम लोग को काम आएगी, तो वी आर रियली थैंकफुल टुवर्ड्स दीपक सर कि तो ऐसे ही आपके फ्रेंड्स भी वुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स यू अगर आप लोग इन सब चीजों को शेयर करेंगे तो, राइट? सो थैंक यू सो मच, आई रेस्ट माय वर्ड्स हियर। बस इतनी सी मेरा एक ये इंटेंशन था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि विकासा कमिटीज विल बी चेंजिंग ओवर द ईयर, राइट? वो हर साल बदलेंगे, बट जो ये टाइम है वो वापस नहीं आएगा। सो अगर ये लोग अगर इतना सारा मेहनत करते तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत आप भी अपने एंड से करिए, राइट? थैंक यू सर, एंड थैंक यू दीपक सर, रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, your session was really amazing. I would be remembering you for entire life. Thank you so much, and thank you Divya for moderating this session, and thank you participants for joining this session and making this series a real success. Thank you so much. Thank you for such good words. Thank you, really good words. Thank you. Yes Divya, you can carry on. Yes. Thank you so much, sir. The session was really so wonderful and so interactive. Thank you. Thanks a lot. Thanks for giving me this privilege. Thank you. We are really glad to have you, sir, here. So with your permission, we would now like to end the session. If yeah, please, we can end. Yes. Okay, Divya, you may carry on, right? Thank you so much. Yeah. Thank you. I can close down. Huh? Yep. I can close down. Huh? Divya would be able to close it, I guess. Yes, Divya.